Good morning, dear students. We were talking about acids, base, and salts. So today this is the second part of chapter 5th. So we have completed natural indicator around us, like litmus is a natural indicator, and turmeric is also a natural indicator. Now China rose. Today we will talk about China rose as an indicator. Okay, China rose. You can see the picture. China rose is petals which is used for the indicator. This is the original color of China rose indicator, pink color. Okay, when we are added acid in this indicator, it will be changed into orange color, and we are added base the China rose indicator, it will be changed into green color. Okay, so जो China rose है पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है इंडिकेटर की तरह. अगर हम इसमें एसिड मिलाएंगे तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम इसमें बेस मिलाते हैं पिंक कलर तो ये अपने ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अ इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस का इंडिकेटर होता है. Now today we will talk about acid rain. What is acid rain? Acid rain क्या होती है? Are you familiar with the term acid rain? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? Acid rain का effect से damage cause हो रहे हैं. As the name of indicate, rain containing excess of acids and called acid rain. When rain is containing excess of acids means जब बारिश में एसिड रेन में ज़्यादा एसिड्स रिलीज होते हैं तो उसी को कहते हैं एसिड रेन. वेयर डू द एसिड कम्स फ्रॉम? ये एसिड्स आते कहाँ हैं अब रेन में? तो द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एज अ एयर pollutant dissolve in the raindrops from the carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. So the acidic substance like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide, they which releases into the air as a air pollutant, जो environment में release होते हैं एयर पॉल्यूशंस के फॉर्म में, तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन की ड्रॉप्स में. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन की ड्रॉप में डिज़ोल्व हो जाते हैं. देन एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स. जो एसिड रेन होती है देन व्हेन जो एसिड रेन होती है तो वो क्या कॉज करती है? बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स में डैमेज कॉज करती है. तो इट इज़ हार्मफुल. एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल. इट कॉजेज damages of building, historical monuments, plants and animals. Okay, so now here is the term of neutralization. Okay, we have learned that acid turn blue litmus paper and bases turn red litmus paper into blue. So we know that I have taught you that acid turn blue litmus paper into red. Acid red blue litmus paper को red में turn कर देता है and base turn red litmus paper into blue और base red litmus paper को blue में turn कर देता है. Let's see what happen when we acid mix with base. When we mixed acid with base, so what will be happen? Now let's see. We are going to use indicator have you not used so far. So it is called phenolphthalein. हमने सारे indicators की बात करी. अब now we will discuss about phenolphthalein. Phenolphthalein is also a indicator. Okay, जो acid और base को indicate करता है, it is called phenolphthalein. Now so it is a activity here, a 5.5 activity to be demonstrated by teacher in the class. It will ये जो activity है ये class में ही होनी possible है. Okay, so we will discuss about neutralization reaction in which when we added acid into base it will be नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो जब हम एसिड और बेस दोनों को डाल देते हैं उसमें तो वो सॉल्यूशन क्या होता है? ना एसिडिक ही रहता है ना बेसिक ही रहता है. वो अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है. मीन्स वो न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन. ना उसमें एसिड रहते हैं ना उसमें बेस. ओके, सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज़ सॉल्ट. उसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसे सॉल्ट कहते हैं. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन द नेचर.
सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस के बीच में हम रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस को दोनों को मिक्स कर देते हैं, देन उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, ना ही वो सॉल्यूशन एसिड रहता है ना ही वो बेस रहता है। तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में। क्या मिलता है हमें? यू कैन सी एसिड एंड बेस, it will give salt and water. Okay, so the following is the example like HCl and sodium hydroxide is acid and base which gives NaCl, sodium chloride, okay, and water. So Bujo added dilute sulfuric acid in lime water. Will the reaction mixture become hot and cool? So have learned the chapter second, but too much acids and stomach causes indigestion. अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड्स हो जाते हैं वो इंडाइजेशन कॉज करते हैं, मीन्स डाइजेशन नहीं हो पाता। तो समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक अ एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contain magnesium hydroxide and neutralize the effect of excessive acid. तो जब हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंट एसिड यूज़ करते हैं एसिड को कम करने के लिए। सो ऐसे ही हम एंट एसिड यहाँ पे रिएक्शंस में भी यूज़ करेंगे अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। नाउ ant bite. When the ant bites, it injected acid liquid, formic acid. So ant releases formic acid when it bite. As I have taught you earlier in your previous video, ant sting has a formic acid. Okay, so into the skin, the effect of acid can neutralized by the rubbing moist baking soda, sodium hydrocarbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. So when जब आंट बाइट करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है हमारी स्किन पे, तो हमें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो, ये कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो जिंक कार्बोनेट होता है जिसमें, वो सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम आंट के बाइट को हटा सकें, वो फॉर्मिक एसिड को कम कर सकें, उसके इफेक्ट को। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल में तो सॉइल क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक एंड बेसिक। प्लांट भी ग्रो नहीं करेंगे जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए एसिड और बेस का, दे इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इट विल कॉज plant damage. Okay, so when the soil is too acidic, it treated with bases like quick lime, calcium oxide and salt lime. Okay, so the soil basic organic material composite is added to in organic matter releases acid and neutralize the basic nature of the soil. So अगर सॉइल में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें बेसिस यूज़ करने चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सॉइल बेसिक ज़्यादा हो जाती है तो हमें उसमें कम ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए जो एसिड जो न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, सो सॉइल का ज़्यादा एसिडिक और बेसिक होना भी हार्मफुल है। नाउ फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रीज में वेस्टेज निकलते हैं, स्मोक निकलता है, वो बहुत सारे एसिड कंटेन करते हैं। दे अलाउ टू फ्लो वाटर बॉडीज एंड एसिड्स किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो ये एसिड्स होते हैं वो फिश को किल करने में या अदर ऑर्गेनिज्म को के किल में हेल्प करते हैं। मतलब उस एसिड्स इतने हार्मफुल होते हैं कि एनिमल्स ऑर्गेनिज्म उससे डेड हो जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो जो फैक्ट्री का एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इन दिस चैप्टर, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट
acids, base, indicator of acids and base. We have different kind of indicator like China rose, litmus paper, and phenolphthalein is also an indicator. Turmeric is also an indicator. Okay, so how we will indicate acid? When in litmus paper it will be convert uh, red litmus paper to blue and blue litmus paper to red. Okay, litmus paper is also an indicator of acid and base. So we have discussed about indicator, and we have also discussed about acid rain and neutralization reaction. When acid and base are mixed, it will be neutralization reaction, and white and soil treatment. Okay, now your chapter is finished.